Hi everyone, so welcome to the part 6 of George J. Summers puzzles, right. We are building logic for CAT 2023, right. So every day from Monday to Friday we are doing one puzzle, right. It's not lengthy, so 7 to 10 minutes of video, correct. So you can watch at your spare time and it gradually build your logic skills, right, which is very much required for cracking LRDI section, correct. Alright, so we have already done 5 parts, right. Now this is part 6, and those who are watching me for the first time, this is my brief introduction. The link of the Telegram channel is given in the description also. You can join the channel because I am posting the puzzles well in advance, okay. So you can solve it beforehand and then watch the videos for solutions and shortcuts. All right. Okay, so this is today's puzzle. Those who have not solved it, you can pause the video and try to solve it, right. The idea is to build logic, not spoon feeding, correct. Okay, let's start then. Okay, so let's call them ABC, right. Easy naam rakhte hain. A, B and C are three remarkable women, each having some remarkable characteristics. Just two are remarkably intelligent, just two are remarkably beautiful, just two are remarkably artistic and just two are remarkably rich. चार categories हैं हमारे पास, and out of three women, two women ये category, ये characteristic follow करते हैं, ठीक है. Each has no more than 3 remarkable characteristics. किसी के पास भी 3 से ज़्यादा characteristic नहीं है. Of A, it is true that if she is remarkably intelligent, then she is remarkably rich. अगर वो intelligent है तो rich होगी. If वाला condition needs to be understand thoroughly, right? If only if, इस पे हम बाद में बात करेंगे, but as of now it should be clear. इसका मतलब क्या होता है? If I say कि if A then B, it means अगर A होगा then B will definitely happen. It does not mean that B cannot be held alone. B अकेला भी हो सकता है. Condition is on A. A ने कंडीशन डाली है कि अगर मैं होऊंगा तो B भी जाएगा, बट B कैन गो अलोन ऑल्सो. अंडरस्टैंड द लॉजिक. आई मीन क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि A भी हो जाए और B भी हो जाए, बट ये भी पॉसिबल है कि A ना हो और B हो जाए. क्लियर. एंड थिंक ऑन रिवर्स. सपोज आई नो दैट कि B इज नॉट गोइंग. अगर B नहीं जा रहा है, सो कैन A गो? अगर बोलते, इफ योर आंसर इज यस, देन इट विल बी ए कॉन्ट्रडिक्शन. व्हाई? क्योंकि अगर ए को भेजोगे सो बी विल ऑल्सो गो, बट बी इज नॉट गोइंग, राइट. बी तो नहीं जा रहा है. तो अगर बी नहीं जा रहा है, दैट्स श्योर आई कैन से कि ए भी नहीं जाएगा. थिंक ऑन द एरो पार्ट, राइट. ऑलराइट. सो इफ ए देन बी से दो रिजल्ट निकाल सकते हो आप. इफ ए विल गो देन यू कैन डेफिनेटली से बी विल गो. And second certain logic is, if you know that B is not going, you can certainly say that A will not go, right. Otherwise ये case possible ही नहीं होगा. I hope it is clear, right. So this is the condition of if. अभी इसकी यहीं पर इसी की ज़रूरत है, so हम इसी की बात करेंगे. Otherwise there is a proper class on that, है ना. If only if and only if, सब पे बात करती है उस पर. Similarly क्या given है आपको? Of B and C, it is true that if she is remarkably beautiful, then she is artistic. Of A and C, it is true that if she is rich, then she will be artistic. ठीक है. So सारी condition if वाली हैं. Who is not remarkably rich? That's your question. All right. तो एक टेबल बना लेते हैं. करेक्ट. A B C नाम दे दिया हमने. इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, रिच, आर्टिस्टिक, राइट. कौन क्या होगा वो देखेंगे. कंडीशन भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे. क्या है? इफ ए के लिए क्या ट्रू है? अगर आई है तो
आर भी होगा. सो अगर आई है तो आर भी होगा. बी और सी के लिए इट इज ट्रू कि अगर वो ब्यूटीफुल है तो आर्टिस्टिक भी होगी. सो बी है तो ए भी होगा, दोनों के लिए, बी और सी, राइट. एंड ए और सी के लिए इट इज ट्रू दैट अगर रिच है तो आर्टिस्टिक होगी, तो आर है तो ए होगा. सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं. ठीक है, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. थिंक, इसको हमें फिल करना है दैट किसके पास क्या है, राइट. सो राइट क्रॉस पुट कर लेंगे हम ना, जिसके पास है उस पर राइट, अदरवाइज क्रॉस. कितने पॉइंट्स या कितने सेक्शंस मुझे फिल करने हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. 3 पीपल आर देयर, राइट, और 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं. उसने ये बोला था मुझे जस्ट 2 आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर 2 इंटेलिजेंट होंगे, 2 ब्यूटीफुल होंगी, 2 रिच होंगी और 2 आर्टिस्टिक होंगी. सो कैन आई से इन ईच कॉलम 2 राइट एंड 1 रॉन्ग आएगा. ठीक है, सो दैट गिव्स यू हाउ मेनी राइट्स, 4 into 2 8, राइट. 8 जगह यहाँ पे राइट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, किसी के पास भी 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो ए बी सी 3 लोग हैं मेरे पास, उसमें अगर आप 8 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 पीपल में और किसी को भी यू कैन नॉट गिव मोर देन 3. सो क्या पॉसिबिलिटी है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज 3 + 3 + 2. और कुछ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कोई 4 हो जाएगा, कोई 5 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. सो 8 को अगर मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ही चांस है कि 3 3 2 हो. इट मीन्स रो में अगर आप बात करोगे तो एक रो में 3 राइट आएंगे, एक रो में 3 राइट आएंगे और एक रो में 2 राइट आएंगे. क्लियर है. अब फिल करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. केस बनाते हैं. ये बोल रहा है आई होगा तो आर होगा और आर होगा तो ए होगा. तो सपोज मैंने मान लिया कि ये इंटेलिजेंट है. अगर ये इंटेलिजेंट है तो रिच भी होगी, और रिच है तो आर्टिस्टिक भी होगी. 3 कैरेक्टरिस्टिक फिल हो गई. इसका मतलब 4 तो हो नहीं सकती, तो ये पक्का ब्यूटीफुल तो नहीं होगी. 3 3 2 रखना है ना आपको रोज में. अगर ये ब्यूटीफुल नहीं है और 2 ब्यूटीफुल मुझे चाहिए, 2 ब्यूटीफुल, 2 इंटेलिजेंट, 2 ब्यूटीफुल, 2 रिच एंड 2 आर्टिस्टिक, तो यानी कि ये दोनों पक्का ब्यूटीफुल हैं. और अगर ये दोनों पक्का ब्यूटीफुल हैं तो इस केस के अकॉर्डिंग दोनों आर्टिस्टिक भी होंगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट. मैंने माना कि अगर ये इंटेलिजेंट है, उससे पता लगा कि ये रिच होगी, रिच होगी तो आर्टिस्टिक भी होगी. इसका मतलब ये ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम फिट कर चुके हैं. अगर ये नहीं है तो यहाँ पर 2 कॉलम में आना चाहिए राइट आपके पास, तो ये दोनों पक्का ब्यूटीफुल होंगी. एंड बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ये दोनों के पे कंडीशंस क्या आती है, अगर ब्यूटीफुल है तो आर्टिस्टिक भी होगा, तो ये दोनों भी राइट आना चाहिए. बट ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज 2 ही लोग आर्टिस्टिक हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी. इट मीन्स ये इंटेलिजेंट तो पक्का ही नहीं है. ठीक, फिक्स हो गया ये. और यहां पर 2 इंटेलिजेंट होनी चाहिए, तो ये दोनों पक्का इंटेलिजेंट होंगी. और इंटेलिजेंट पे कोई कंडीशन नहीं है एफ वाली, तो मैं अभी और कुछ नहीं निकाल सकता हूं. क्लियर. और सोचते हैं, बी और ए की बात करते हैं. इन दोनों के ऊपर क्या कंडीशन है कि अगर एक बी है तो दूसरा ए पक्का होगा. नाउ मुझे यहां पर 2 राइट चाहिए. क्या मैं ये दोनों राइट कर सकता हूं? अगर मैंने इन दोनों को ब्यूटीफुल मान लिया तो ये दोनों आर्टिस्टिक हो जाएंगी, करेक्ट, पक्का से. उस केस में क्या होगा कि ये पक्का क्रॉस होगा, ये पक्का क्रॉस होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 2 रिच तो होना चाहिए था, है ना. मतलब ये दोनों ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकती एक साथ. सो एक बात क्लियर है कि वन ऑफ देम विल बी ब्यूटीफुल एंड वन इज नॉट, बिकॉज 3 में से 2 तो ब्यूटीफुल है ना. दोनों नहीं हो सकती हैं तो एक होगी और एक नहीं होगी. इट मीन्स ये तो पक्का ही ब्यूटीफुल है. अगर मुझे इस कॉलम में 2 राइट फिल करने हैं, वो 2 राइट कहाँ कहाँ हो सकते थे, ये दोनों हो सकते थे, नॉट पॉसिबल. तो क्या हो जाएगा, या तो ये दोनों हो जाए या फिर ये और ये हो जाए, है ना. इसका मतलब किसी भी केस में ये तो पक्का ब्यूटीफुल है. तो ये हमारे फिक्स हो गए. देखो ये जो गोले मार रहा हूँ मैं,
इसका मतलब ये तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि पक्का ही है ये, ठीक है। और अगर ये ब्यूटीफुल है तो कोई कंडीशन इस पर नहीं है, अच्छा छोड़ दो। चलो अब सोचते हैं आर और ए, सिमिलर लॉजिक लगाते हैं। क्या ये दोनों एक साथ रिच हो सकती हैं, बिकॉज ए और सी पे कंडीशन है ना। अगर मैंने मान लिया कि ये भी रिच है और ये भी रिच है, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों आर्टिस्टिक भी होंगी, ठीक है। इन दैट केस ये दोनों क्रॉस हो गए, बिकॉज दो ही दो आ सकते थे इसके अंदर, राइट। अब सेम लॉजिक, अगर ये आर्टिस्टिक नहीं है, करेक्ट, ये आर्टिस्टिक नहीं है, अच्छा उस केस में ये भी देखो कि ये 3 राइट हो चुके हैं, तो ये पक्का क्रॉस होगा, बिकॉज 3 से ऊपर कैरेक्टरिस्टिक हो नहीं सकती। और अगर ये 3 सही है तो ये पक्का सही होगा। और अगर ये सही हुआ तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये ब्यूटीफुल है तो इसको आर्टिस्टिक होना चाहिए था, जो नहीं है। मतलब जो एजम्पशन थी हमारे कि ये दोनों रिच हैं, वो गलत हो गई, क्योंकि आपने ये लिया तो आप फिट ही नहीं कर पा रहे हो कंडीशंस। क्लियर हुई बात। मैंने इन दोनों को रिच माना तो ये दोनों आर्टिस्टिक भी हो गई, उससे ये दोनों 2 राइट आ गए, 2 राइट आ गए, सो ये क्रॉस क्रॉस आ गया। और यहाँ पर 2 राइट आ गए हैं तो ये क्रॉस आ गया, तो ये 2 ब्यूटीफुल होने चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे राइट आएगा। बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन की अगर ये ब्यूटीफुल है तो इसका आर्टिस्टिक होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, तो ये केस हो गया आउट। सो इसका मतलब सेम लॉजिक से ये दोनों एक साथ रिच नहीं हो सकती, तो वन ऑफ देम विल बी रिच, वन इज नॉट, तो ये पक्का रिच है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे पास। चलो अब फिट कर लेते हैं। अब देखो यहां पर 2 ही केस बचते हैं, उस पर ट्राई कर लेते हैं। मान लो कि ये ब्यूटीफुल है और ये नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये ब्यूटीफुल है तो ये आर्टिस्टिक होगी, है ना। इसके 2 फिट हो गए, तो उस केस में क्या हुआ कि ये 4 राइट हो गए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसको मैं ब्यूटीफुल नहीं मान सकता, तो डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल है और ये नहीं है। और अगर ये ब्यूटीफुल है तो इस लॉजिक से आर्टिस्टिक होगी, है ना। तो अभी तक तो टेंशन नहीं है मेरे पास, करेक्ट। और यहाँ पर 3 राइट हो गए हैं तो ये पक्का क्रॉस होगा, तो इसमें 2 राइट होने के लिए ये पक्का सही होगा, राइट। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ इट इज़ रिच तो ये आर्टिस्टिक भी होगी, तो यहाँ पर ये आर्टिस्टिक नहीं होगी। सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। What was the question? Who is not remarkably rich? कौन रिच नहीं है? आंसर इज सी, क्लॉडिया। क्लॉडिया इज नॉट रिमार्केबली रिच। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा लेंदी था, है ना, समझने वाला था, बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, राइट। ओके, चलिए, सो विल बी डूइंग मोर पजल्स एवरी डे. Keep watching the videos. If you have not watched the previous videos, please watch those also, because every puzzle is different, right? And the idea is to build the logic only, correct? And do subscribe the channel, do subscribe the this link, right, Telegram channel also, okay, and like the video also. Okay, all right, see you, bye bye in the next video, correct? See you in the next video.